does it mean for JEE aspirant? Inner focus JEE aspirant के लिए क्या मायने रखता है? So first of all, we have to understand what is the inner focus. Inner focus is all about the self-awareness and self-control. Understanding your own thoughts, habits and distractions. Correct. Practice the 50-10 rule. 50-10, okay. मीन्स अगर आप 1 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारा जो अटेंशन स्पेन है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है. मैक्सिमम किसी का 30 मिनट, किसी का 45 मिनट, किसी का मैक्सिमम 60 मिनट होता है. एंड योर ब्रेन नीड अ ब्रेक आफ्टर 1 आवर. Namaskar, welcome back to the JEE Manthan podcast. Today's topic is one that every JEE aspirant battles with. Focus, Dhyan. To help us understand how students can apply continuous focus during JEE advanced preparation, we have a very special guest, Mr. Ajay Sharma, National Academic Director, Engineering, Akash Education. He is a mentor to countless JEE toppers and brings over 17 years of experience in guiding students toward IIT success. Welcome Ajay sir. Thank you, love sir, and I'm very excited to be here. बहुत बहुत स्वागत है अजय सर आपका तीसरे एपिसोड में JEE मंथन के. और इस बार फिर हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं और सवाल मेरे पास तैयार है. I'm very excited to be here. I am going to share some tried and tested strategies on how a student can build strong focus using the Daniel Goleman approach. And this is very important for the JEE Advanced point of view. Daniel Goleman, in his famous book, he says that attention is like a mental muscles that can be trained, strengthened and directed. Something I have seen lot of transform average performer into the top rankers. And according to the Daniel Goleman, he introduced some beautiful ideas. According to the Daniel Goleman, there are 3 types of overlapping domain of focus. One is the inner focus, that means focus on own thoughts, feelings, impulse and self-management. Second one is other focus, where the attention directed towards the others, empathy, social awareness, listening, etc. And third one is the outer focus, where awareness of their wider environment, systems, trends, context, that student can see or any person can see the big picture. So that is quite intriguing sir, and I am looking forward to know and learn more about it. So I have my questions ready. Yes. तो क्या start करें sir? Yes sir. So let me ask my first question sir. The first type of focus Daniel Goleman talks about, inner focus, जैसा आपने भी कहा. So what does it mean for JEE aspirant? Inner focus JEE aspirant के लिए क्या मायने रखता है? So first of all, we have to understand what is the inner focus. Inner focus is all about the self-awareness and self-control. Understanding your own thoughts, habits and distractions. Correct. It is the foundation for consistent study. Here what I tell to my students. Number 1, set a daily routine. What kind of the study you want to do? Like कितने घंटे आप पढ़ना चाहते हैं, 3 घंटे, 6 घंटे, तो उसका एक सेट रूटीन हो. 2 आवर्स का आपको ब्रेक लेना है, 3 आवर्स के 2 सेट्स आपको करना है. सेकेंड नंबर इज एलिमिनेट द डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस. करेक्ट. आजकल बच्चे जब भी स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल पास में लेकर के बैठते हैं. बिल्कुल. और मोबाइल में पूरे दिन भर में 100+ नोटिफिकेशंस आते हैं. और जब भी एक नोटिफिकेशन आता है, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का स्टडी है, इट किल मिनिमम 12 मिनट ऑफ आवर अटेंशन. ओह. और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो जब भी एक नोटिफिकेशन आएगा, आवर ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट द रिस्पॉन्सिंग कि इसके बारे में वो क्या सोच रहा होगा, या क्या रिप्लाई देना है, या मेरे को क्या करना चाहिए. सो प्लीज़ कीप ऑल द डिजिटल डिवाइस अवे फ्रॉम योर साइट. करेक्ट. अब जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. इवन इट शुड बी फिजिकली अवे फ्रॉम योर रूम. प्रॉक्सिमिटी से दूर रहे, उससे भी दूर रहे. Yes. और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आफ्टर ए सर्टेन ब्रेक you can take your device and you can utilize in a proper way. जी. Third one is practice the 50-10 rule. 50-10, okay. Means अगर आप 1 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारा जो अटेंशन स्पेन है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है. मैक्सिमम किसी का 30 मिनट, किसी का 45 मिनट, किसी का मैक्सिमम 60 मिनट होता है. एंड योर ब्रेन नीड अ ब्रेक आफ्टर 1 आवर. ओके. तो 50-10 रूल सजेस्ट करने का मतलब है 50 मिनट आप
कंटिन्यूसली फोकस स्टडी कीजिए और 10 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। जब आप 10 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लेते हैं तो आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है। ड्यूरिंग दिस ब्रेक यू कैन टेक ए वाटर, टी, कॉफ़ी और यू कैन वॉक अराउंड। तो उसके बाद में अगेन आप वापस से 50 मिनट स्टार्ट कीजिए एंड देन अगेन यू कैन टेक अ ब्रेक। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं यू नीड दिस काइंड ऑफ 6 ब्रेक। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं यू नीड 4 ब्रेक्स। दैट्स इंटरेस्टिंग। अगर आप फोकस स्टडी करते हैं तो आपका पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डीपर ब्रेन वर्क करता है। ओके। एंड फोर्थ वन इज माइंडफुल माइक्रो ब्रेक्स। जब भी आप बीच में ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, स्टार्ट योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपने आप को काम कीजिए, कूल कीजिए। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, आपको प्रेशर नहीं आएगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेक योर अटेंशन। अच्छा। जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं, आप पूरे दिन भर में आपने क्या किया, आपका स्टडी रूटीन क्या था, आपका कोचिंग का रूटीन क्या था, आपने क्या क्या आज दिन भर में पढ़ा, उस ड्यूरेशन में आपका ध्यान कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इनिशियली अगर आप 1 वीक तक अपने अटेंशन को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा टाइम कहाँ ज़्यादा किल हो रहा है। लाइक सपोज ये अटेंशन डिफरेंट काइंड की हो सकता है आपने अचानक आपको भूख लगी और आप चले गए और आप 2 आवर्स तक आए नहीं। तो कैसे टाइम मैनेज करना है, दैट्स ऑल्सो यू नीड टू ट्रैक ड्यूरिंग योर फोकस एक्टिविटी। ओह वाओ। तो सर ये तो बात हुई इनर फोकस की। नाउ गोलमैन ऑल्सो टॉक्स अबाउट अदर फोकस। हाउ डज बीइंग अवेयर ऑफ अदर्स हेल्प इन जेईई प्रिपरेशन? अगर मैं हिंदी में भी मतलब थोड़ा पूछूं कि दूसरों के प्रति जागरूक रहना या उन्हें समझना जेईई की तैयारी में किस तरह मदद कर सकता है एक स्टूडेंट को? सो द सेकेंड वन इज द अदर फोकस मीन्स connecting or with the others like mentors, teachers और peer group, उनके साथ में कनेक्ट रखे कैसे वो बच्चा और ज़्यादा फोकस रह सकता है। लाइक जैसे अगर क्लासरूम के अंदर हैं तो दे शुड आस्क द डाउट टू द टीचर्स, दे शुड नॉट हेजिटेट। नंबर 1, अगर वो बच्चा डिस्कस ही नहीं करेगा तो दे कैन नॉट बी लर्न। सो दिस इज काइंड ऑफ द अदर फोकस। एंड द सेकेंड वन इज द टू डिस्कस द प्रॉब्लम इन ए स्टडी ग्रुप। जैसे क्लासरूम में जो भी उनके ग्रुप के सारे बच्चे हैं, उन बच्चों को आपस में जो प्रॉब्लम्स नहीं आती है एक दूसरे को डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना पीयर ग्रुप में, दैट इज द अदर फोकस। सो इट शुड बी देयर। आप बच्चा कई बार क्या है साइलोज में रहता है, अकेला ही पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, तो वो उतना अच्छा नहीं सीख पाता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ द स्टूडेंट जब वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं और आपस में कोलैबोरेटिव अप्रोच में किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कई बार कोई प्रॉब्लम मेरे को स्टक करती है, दूसरे को बहुत जल्दी आ जाती है। बिल्कुल ठीक। कई बार मेरे को जल्दी आती है, किसी दूसरे को नहीं आती। सो कोलैबोरेटिव अप्रोच से उसकी लर्निंग फास्ट होती है। एंड थर्ड वन इज द लिवरेज द फीडबैक। मीन्स पीयर ग्रुप से और टीचर से पूछना चाहिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मेरी जो जेईई की प्रिपरेशन चल रही है उस प्रिपरेशन के अंदर मेरे को और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सो दीज आर द अदर फोकस। एंड द लास्ट वन इज अवॉइड द एनर्जी ड्रेनर। मीन्स बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पर हमारा अननेसेसरी में टाइम वेस्टेज हो जाता है। पूरे दिन भर में आपने अचानक ही कुछ डिस्कशन किया और आप कहीं पे फोकस डाइवर्ट हो गया और आप कहीं पे और चले गए। सो सेट योर रूटीन और ट्राई टू अवॉइड द एनर्जी डिनर्स, या ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे बच्चे जिनके साथ में थोड़ा सा ट्राई टू अवॉइड अगर आप फोकस स्टडी करना चाहते हैं। बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फोकस। सो आपका एक ही गोल है और आपका वो गोल आपको नजर आना चाहिए एवरी टाइम। करेक्ट। सो इट मीन्स कि फोकस ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू द पीपल यू वर्क विथ और you share your time with. Yes. That is quite interesting, sir. So, sir, after inner focus and other focus, now let's focus on outer focus. So, how can it help JEE aspirants keep going through long months of preparation? ये जो लंबे समय की जो तैयारी होती है, एक स्टूडेंट की जेईई की तैयारी करता है, जब इतना लंबे समय बिताता है, उसमें आउटर फोकस का क्या महत्व रहता है, सर? सो आउटर फोकस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द लार्जर पर्पज। आपका पर्पज क्या है, आपका गोल क्या है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जेईई, आपका ड्रीम IIT है, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं या उससे कनेक्टेड जो एक्टिविटीज़ है वो हमें रखनी होगी। लाइक फर्स्ट वन इज अ कनेक्ट एफर्ट टू आउटकम।
आपको विजुलाइज करना चाहिए, डेली अफर्मेशन करना चाहिए, आई एम गोइंग इन पर्टिकुलर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। Correct. ये विजुलाइजेशन और ये लार्ज फोकस आपका होना चाहिए। सो दिस इज द आउटर फोकस कि आपका दूर का आपका विजन क्या है। सेकेंड वन इज स्ट्रेटजिक स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। स्ट्रेटजिक स्टडी प्लान में हम क्या बता सकते हैं, लाइक आपको सब्जेक्ट वीकली, मंथली आप कैसे क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का या जो भी आपका स्टडी प्लान आपका बना हुआ है, जो लेक्चर प्लानर्स बने हुए, आप उनको एज इट इज फॉलो कीजिए, बिकॉज वो भी बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए होते हैं। करेक्ट। सो थर्ड वन इज द सिमुलेट द एग्जाम इन्वायरमेंट। जब भी आप एग्जाम देते हैं, आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एग्जाम देना चाहिए। जैसे मान लो जेईई मेन का आप एग्जाम दे रहे हैं, करेक्ट, 3 आवर का ड्यूरेशन है आपका। जनरली एग्जाम जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है या इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट का टाइमिंग है 9:30 to 12:30 और इवनिंग शिफ्ट का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके आपको टेस्ट देना चाहिए। आप स्टार्ट में नहीं दे रहे, लेकिन एटलीस्ट जब लास्ट में जब आप मॉक टेस्ट की तरफ पहुंचते हैं तो उस टाइम पे एग्जाम पैटर्न को आपको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। करेक्ट। एंड उसके अलावा अगर जेईई एडवांस का एग्जाम है तो वहाँ पे जेईई एडवांस के एग्जाम में 6 आवर्स का पैटर्न होता है, जिसमें पहले पेपर 1 होता है, देन बीच में ब्रेक होता है, देन अगर पेपर 2 होता है। तो जब आप अपने पेपर्स को देते हैं तो आपको पेपर 1 के बाद में उतना ही ब्रेक और फिर पेपर 2 आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में देना चाहिए। ओके। एंड लास्ट वन इज अडेप्ट टू द पैटर्न्स। हाँ जी। मीन्स डिफरेंट जैसे जेईई एडवांस इज अ सरप्राइज एग्जाम भी बोलते हैं कई बार इसको हम, क्योंकि इसमें एवरी टाइम पैटर्न बदल जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं। तो आपको लास्ट के PYQs जो है हमेशा सॉल्व करने चाहिए एग्जाम के। जेईई मेन में लास्ट 2025 में, 24 में, 23 में किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। और जेईई एडवांस के अंदर 2025, 24, 23 में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ओके। तो सर जितना मैं समझ पाया हूँ, दिस आउटर फोकस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द विजन। और मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं सर कि सोच मत कि मंजिल अपनी कैसे पानी है, सोच मत कि मंजिल अपनी कैसे पानी है, रुक मत कि मुश्किलें तो आनी जानी है, सोच मत कि मंजिल अपनी कैसे पानी है, रुक मत कि मुश्किलें तो आनी जानी है, ध्यान बस रख एक बात सदा, ध्यान बस रख एक बात सदा, मेहनत ही हो ईमान, बाकी सब बेईमानी है। तो अगर आपको लंबा चलना है, अपने विजन को पूरा करना है, तो ये बात ध्यान यानी कि फोकस में रखें कि मेहनत, हार्ड वर्क जो है लगातार करते रहें, कंसिस्टेंटली करते रहें। वेरी गुड। सो अजय सर, यू हैव ऑफन सेड दैट द फोकस इज अ स्किल, यानी कि ध्यान जो है एक कौशल है, नॉट अ टैलेंट। हाउ कैन स्टूडेंट्स ट्रेन देयर अटेंशन मसल डेली? उसके लिए कुछ स्मॉल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आपको मॉर्निंग रिचुअल्स, सुबह उठते ही 5-10 मिनट का आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड वन, आपको मोनोटास्क करने, मीन्स अगर एक टाइम में जब आप स्टडी करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करें, जो भी आपने टाइम लगाया है, या फिर हमने जो डिस्कस किया है 50-10 वाला रूल, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं 50 मिनट तक आप उस पर फोकस कीजिए, देन यू कैन चेंज। थर्ड वन इज स्लीप एंड न्यूट्रिशन। सोना बहुत जरूरी है। बच्चे कई बार अपना रूटीन पूरा बिगाड़ करके रखते हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं, फिर सुबह उठते हैं, क्लास में जाते हैं तो उनका अटेंशन ब्रेक होता है। आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। आपका आप लेट नाइट तक पढ़ने वाले हैं, यू कैन डू इट, बट आपका वो रूटीन होना चाहिए कि 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपका मैंडेटरी है। और अगर आप अच्छा फूड खाएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, और अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका फोकस और अटेंशन स्पेन ज़्यादा होगा, और जितना अच्छा आपका फोकस होगा उतना ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको डेली 10 घंटे पढ़ना है, आप 6 घंटे पढ़ करके फोकस स्टडी करके आप जेईई एडवांस इजीली क्रैक कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्ट डेली। आपने दिन भर में क्या किया, एंड ऑफ द डे अगर आप उसको रिव्यू करते हैं और आपको देखते हैं कि मेरा आज कैसा गया, प्रोडक्टिविटी कैसी थी मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो ये बहुत अच्छा होगा। इफ़ यू डू दिस एक्टिविटी स्मॉल टास्क ऑन डेली बेसिस, डेफिनेटली आप अपने आप के फोकस को ट्रेन कर सकते हैं। आपको जब आप एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे उसको कि मेरा कहाँ पर कितना टाइम गया और किस एक्टिविटी में मेरा टाइम वेस्टेज हो गया, तो विद इन वीक और 10 डेज के अंदर आपके अंदर काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल येट पावरफुल और डुएबल भी है।
मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट डिसिप्लिन। अगर आप उस डिसिप्लिन में आ जाते हैं और सेट कर लेते हैं अपने रूटीन को, तो ये आपकी सेहत के लिए, आपके फोकस के लिए और आपकी कार्य क्षमता यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, करेक्ट। सो नाउ लेट्स गेट प्रैक्टिकल सर। यस। और जो फाइनल फेज होता है प्रिपरेशन का स्टूडेंट की जर्नी में, या व्हेन स्टूडेंट स्टार्ट अपीयरिंग फॉर मॉक टेस्ट, ऐसे समय में व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ फोकस्ड? बहुत सिंपल है, इसके अंदर वापस मैं बताऊंगा, सिंपल स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। यूज फोकस ब्लॉक फॉर द कोर सब्जेक्ट, लाइक आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, right. तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका सुबह मॉर्निंग में या जब भी आप फ्रेश उठते हैं उस टाइम पे आपका फोकस सबसे ज्यादा होता है। करेक्ट। तो आपका जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको आपको सबसे पहले स्टडी करना चाहिए, जब आपका फोकस और अटेंशन स्पेन सबसे ज्यादा है। सेकंड, जब आपका थोड़ा लो होता है तो आप सेकंड वीक सब्जेक्ट को आप करें, और सबसे लास्ट में उस वाली सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें जहाँ पर आपको बहुत अच्छा आता है और आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। मींस इवनिंग आवर्स के अंदर आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं अगर जनरली देखता हूँ तो बच्चों का केमिस्ट्री वीक होता है, फिजिक्स ठीक होता है और मैथ्स उसका बहुत अच्छा होता है जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं। तो मॉर्निंग में यू कैन कीप अ केमिस्ट्री, इन आफ्टरनून यू कैन कीप अ फिजिक्स एंड देन मैथ्स। एंड देन सेकेंड वन इज एक्टिव प्रैक्टिस और पैसिव रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, कई बार थ्योरी केवल रिवाइज करता है, व्हेनेवर दे फील द एंजाइटी और या पेपर में मार्क्स कम आते हैं तो वो केवल वापस से थ्योरी पढ़ने लग जाता है। सो माई कंसर्न इज यू शुड फोकस योर टाइम मैक्सिमम ऑन 70% ऑन योर प्रैक्टिस और एरर एनालिसिस, एंड 30% आपको सब्जेक्ट के नॉलेज को गेन करने में या उसको रीड करने में, रिवाइज करने में स्पेंड करना चाहिए। 70% आपको प्रैक्टिस पे ही फोकस करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज, हमेशा कोई भी प्रेशर, देखो मार्क्स कम और ज़्यादा आते जाते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे मैं गलत हूँ। सो यू शुड बी वेरी काम एट दैट टाइम और मैनेज द exam pressure, or you can say score pressure very easily. Correct. That's so true, sir. In the sense, we have interviewed or we have gone through testimonials of lots of toppers also, and we have seen them saying मेंटल काल्मनेस ने उनको बहुत हेल्प किया है इन देयर प्रिपरेशन जर्नी, स्पेसिफिकली जो लास्ट फेज होता है या जब वो मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं। सो दैट इज द की टू सक्सेस, डेफिनेटली सर। सो अजय सर, बिफोर वी फाइनली एंड दिस टुडेज पॉडकास्ट, व्हाट वुड बी योर फाइनल मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स who are preparing for JEE Advanced? My final advice to all the JEE Advanced preparing student, keep one line in your mind: attention is the hidden driver of excellence. To crack the JEE Advanced, you must, number one, strengthen your inner focus, means understand yourself. Second, build other focus, means learn from the others. And third one is develop outer focus, keep your goal in front of you. जब आप अपनी IIT का गोल, बड़ा विजन आप अपने सामने रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। Beautifully said, Ajay sir. Thank you for sharing your experience and wisdom. I am sure our listeners will walk away inspired and better prepared to focus on what truly matters. और याद रखिएगा, जिन्होंने भी आज हमारा पॉडकास्ट देखा है, इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना हमारे चैनल पे मत भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।